लाइक स्टूडेंट्स ऑफन आस्क कि सर मैं मॉक्स दे रहा हूँ लेकिन मेरा स्कोर नहीं इम्प्रूव हो रहा है एंड इन माई ऑल दोस प्रीवियस 5-10 मॉक्स आई एम जस्ट स्कोरिंग एट अ रेंज ऑफ अराउंड 55-65. दे डू नॉट हैव द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। तो वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वाला डिफरेंस ना ऑटोमेटिकली दिखने लगता है। सो द फर्स्ट की इज दैट इम्प्रूव योर कॉन्सेप्ट्स, रिवाइज योर कॉन्सेप्ट्स एंड देन ओनली योर मॉक स्कोर्स वुड इंक्रीज। What would you say about the real value of mock test? मॉक्स एक्ट एज अ बैकबोन कि आपने प्रिपरेशन कर ली, एक बुक वॉर्म की तरह आपने पढ़ ली चीज़ें कि हाँ ठीक है इसको ऐसे पढ़ना है, ऐसे करना है। एंड देन सेकेंडली यू विल नॉट गेट टू नो दैट व्हाट लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्लैट एग्जामिनेशन होल्ड्स फॉर यू। सो व्हाट आई फील इज दैट यू शुड कवर योर हाईएस्ट वेटेड सेक्शंस द फर्स्ट। Then what should be the correct approach for mock analysis? Like, देखो, हम गलतियां करते हैं, गलतियों से ही सीखते हैं। so hello everyone, this is Ayush and today we are being joined by a very esteemed guest, Meet Barkha ma'am. She is LLM gold medalist from OP Jindal University, and with her today we are going to have a very important and very comprehensive discussion upon a very important aspect of your CLAT preparation, that is mock test. So if you ever wonder like how many mock tests should I take in my preparation journey, or what should be the correct approach of taking mocks, or if you are not able to manage time in your mock test, so with Barkha ma'am today we are going to have a very detailed strategic session over it, and we'll be discussing about like what should be the correct approach for your preparation and what should be your correct approach for attempting mock test. So ma'am, like students often ask कि सर मैं मॉक्स दे रहा हूँ लेकिन मेरा स्कोर नहीं इम्प्रूव हो रहा है. लाइक आफ्टर 5-10 मॉक्स दे स्टार्ट मेंशनिंग कि सर मैंने 5-10 मॉक्स तक तो एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिया. लाइक मेरे फर्स्ट मॉक में अगर 35 मार्क्स आए थे तो आई हैव मेड श्योर कि मेरे अब 55-60 तक आ रहे हैं मार्क्स. बट देन आई हैव बीन अपीयरिंग फॉर एटलीस्ट 5-10 मॉक्स and in my all those previous 5-10 mocks I am just scoring at a range of around 55-65, or it might be 70 for someone. So what is that particular key to make sure कि हम उस रेंज से ऊपर जा पाए? What should be an ideal strategy for any aspirant? सी आयुष, फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा अगर मैं मॉक्स के बारे में बताऊं, सो मॉक्स आर अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर क्लैट जर्नी। मतलब एक बैकबोन जिसे बोलते हैं, तो मॉक्स एक बैकबोन की तरह रिएक्ट करते हैं किसी भी स्टूडेंट की क्लैट प्रिपरेशन जर्नी के लिए। एंड व्हेन द स्टूडेंट्स टेल अस कि द मॉक स्कोर्स आर स्टक बिटवीन 50-60s, so the biggest flaw that I understand that the students do is that they do not have the conceptual clarity. उनको वो conceptual clarity जो उनका फर्स्ट मॉक है जहाँ उन्होंने 20, 25, 30 स्कोर किया था, उससे तो वो इम्प्रूवमेंट करते आ गए हैं और शायद उन्होंने 55-60 तक की अपनी रेंज पकड़ ली है। बट उसके बाद जब वो एक सर्टन लेवल ऑफ मॉक्स पे पहुंच जाते हैं तो वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वाला डिफरेंस ना ऑटोमेटिकली दिखने लगता है। एंड दैट इज वेयर द स्टूडेंट्स हैव टू अंडरस्टैंड दैट द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज द ओनली की दैट यू have to follow your concepts rigorously and then only you can improve your scores. Otherwise आपका ये जो एक stagnancy है ये maintain ही रहेगी, क्योंकि आपको पता चल गया है कि एक similar type of questions you have already attempted. But now if your concepts are not clear, your mock scores are not going to increase. So if your scores are stuck somewhere in any of the 5 sections of your CLAT reasoning exam, CLAT examination, then 100% the problem is that your concepts in that one particular section is not clear. So the first key is that improve your concepts, revise your concepts, and then only your mock scores would increase. Okay. Ma'am, what would you say about the real value of mock test? I mean, according to you, how important are mock tests for any aspirant? See, as I already mentioned that mocks act as a backbone. कि अगर आप क्लैट प्रिपरेशन जर्नी में सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन पे फोकस करते रहे, आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लिया, बट आपने ये एनालाइज ही नहीं किया कि आप कितने तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो, दैट इज वेयर द ओनली डिफरेंस अकर्स। कि आपने प्रिपरेशन कर ली, एक बुक वॉर्म की तरह आपने पढ़ ली चीज़ें कि हाँ ठीक है इसको ऐसे पढ़ना है, ऐसे करना है, बट देन यू इफ यू डोंट गिव द सेक्शनल टेस्ट एंड द फुल टाइम मॉक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल you will not get to know whether you're able to complete the paper like in 120 questions in 120 minutes. And then secondly, you will not get to know that what level of questions CLAT examination holds for you. So that is the only thing that mocks give you a reality check कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आपके कौन से स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, कौन से आपके वीक एरियाज हैं. सो दैट इज वेयर, जैसे आपकी जो रीढ़ की हड्डी आपका काम करती है आपकी बॉडी में, एग्जैक्टली दैट मॉक डज फॉर यू फॉर योर क्लैट एग्जामिनेशन. जब तक आप मॉक्स नहीं दोगे, आपको आपकी स्ट्रेंथ्स, आपकी वीकनेसेस के बारे में नहीं पता चलेगा. सो मॉक्स एक्ट एज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर क्लैट जर्नी. Right, ma'am. Ma'am, one more thing, like many students, they struggle in deciding like which section they should attempt first.
like what should be the order of attempting? Should the student be attempting in the order the question paper is given, or they should be attempting with some other approach? So basically I'm just seeking clarity over like what should be the best sequence of attempting mock Right, test, right. and should that sequence be same for every mock, or should it change mock to mock? We are just looking a clarity over that. See, this is the problem that every CLAT student faces. मतलब हर एक CLAT student का CLAT aspirant का ये क्वेश्चन होता ही होता है कि किस सीक्वेंस में हम क्वेश्चन पेपर Yes. को अटेम्प्ट करें, और मेरा आंसर हमेशा ही सेम रहता है, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर प्रिपरेशन कि आपका Exactly. कौन सा सेक्शन स्ट्रांग है, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन दैट. बट इफ यू आस्क फॉर माई पर्सनल ओपिनियन, तो मैं ये बोलती हूँ जो आपके दो हाईएस्ट वेटेड सेक्शंस हैं, द लीगल रीजनिंग सेक्शन एंड जीके करंट अफेयर Right, सेक्शन, right. स्टूडेंट्स को सबसे पहले वो अटेम्प्ट कर देने चाहिए. Like if I say legal reasoning section and the GK current affairs section both contains almost 30 to 32 questions. So that is around 60 to 64 questions. अगर आप वो दो सेक्शन सबसे पहले अटेम्प्ट कर देते हो तो आपको एक बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है कि, क्योंकि देखो अगर आपको जीके आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, तो उसमें आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. सो सबसे पहले आप अपना लीगल रीजनिंग का सेक्शन उठाकर उसको 20-25 मिनट्स में इज़ द आइडियल टाइम अगर आप कर सकते हो. तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर 25 मिनट्स में आपने अपना अगर जीके करंट अफेयर्स कर लिया, अगर 25 मिनट्स में आपने अपना लीगल रीजनिंग का सेक्शन कर लिया, और 15-20 मिनट्स में अगर आपने अपना जीके करंट अफेयर्स का सेक्शन कर लिया, तो ऑलमोस्ट 40-45 मिनट्स में आपके दो हाईएस्ट वेटेड सेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे. Yes, right. एंड उसके बाद आपके पास ऑलमोस्ट 75 to 80 मिनट्स बचेंगे तीन सेक्शंस को कवर करने के लिए. सो व्हाट आई फील इज दैट यू शुड कवर योर हाईएस्ट वेटेड सेक्शंस द ma'am. फर्स्ट, एंड देन द नेक्स्ट सीक्वेंस वुड बी इंग्लिश, लॉजिकल एंड कॉन्ट्स. बट आप इसको ऑल्टरनेट भी कर सकते हो कि अगर आपको पता है कॉन्ट्स एक मेक और ब्रेक सेक्शन होता है तो आप कॉन्ट्स को बीच में कर सकते हो, एंड देन यू कैन फोकस अपॉन योर इंग्लिश एंड लॉजिकल. दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. बट आई फील दैट द टॉप टू सेक्शन शुड बी द लीगल रीजनिंग एंड जीके करंट अफेयर्स सेक्शन. Right, ma'am. Ma'am, one more thing I was, looking to inquire, like, is mock analysis really that important? Like, we are being told and everyone is being told about mock analysis. So, is it really worthy to put 2 or 3 hours upon analyzing a mock which you have already given? And if it is necessary, then what should be the correct approach for mock analysis? Like, if someone is attempting mock on any online platform, then what should be their approach for mock analysis? And if someone is giving mock in the traditional approach in the OMR sheet in offline mode, so what should be the ideal strategy for such aspirant? राइट. देखो, हम गलतियां करते हैं, गलतियों से ही सीखते हैं, राइट. Right, वी हैव right, वी हैव yes. ऑलवेज हर्ड अबाउट दिस. बट अगर आप मॉक को एनालाइज ही नहीं करोगे, सो यू डोंट नो कि आपने कितना सही किया, कितना गलत किया, राइट. Right. सो दैट इज द पावर ऑफ एनालिसिस. इट टेल्स यू दैट वेयर आर यू गोइंग राइट एंड वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग. अगर आपका कोई सेक्शन स्ट्रांग है तो वही आपको मॉक ही रिफ्लेक्ट करेगा. अगर आपका कोई सेक्शन वीक है जिसमें आप बार बार गलतियां कर रहे हो, वो भी मॉक ही आपको दिखाएगा. सो दैट इज द पावर ऑफ एनालिसिस, दैट यू गेट टू नो दैट वेयर डू यू एक्चुअली स्टैंड. सो एनालिसिस इज समथिंग, अगर आपने एनालिसिस नहीं किया तो मॉक देने का भी कोई फायदा नहीं है. अपने सिर्फ दिल को समझाने के लिए मॉक मत दो. अगर एनालिसिस नहीं करना है, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ यू गिविंग अ मॉक, बिकॉज कैरिंग अ शीट ऑफ पेपर, जस्ट गिविंग द मॉक फॉर द सेक ऑफ सेइंग कि हाँ मैंने मॉक दे दिया, एंड देन नॉट डूइंग एनी एनालिसिस, तो आपको पता ही नहीं चल रहा है आप कहाँ गलती कर रहे हो. सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ गिविंग द मॉक. एंड द पावर ऑफ एनालिसिस लाइज कि आप चाहे उसको 2-3 घंटे लगा के एनालाइज मत करो. अगर आपकी वो पावर है, आपको पता है कि हाँ ये क्वेश्चंस, लेट्स फॉर से अगर आपका स्कोर आया 70, तो वो जो बचे हुए 50 मार्क्स हैं वो कहाँ आपने लूज आउट किए, वो है एक्चुअल पावर ऑफ एनालिसिस. क्योंकि 70 मार्क्स तो आपने गेन कर लिए, आपको पता है कि आपने कहाँ सही किया है. वो 70 मार्क्स आपको ये बताएंगे विच सेक्शन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन. बट जो बचे हुए 50 मार्क्स जो आपने लूज आउट किए हैं, दैट विल टेल यू कि आपको और कौन से सेक्शंस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है. और मेरी स्ट्रैटेजी हमेशा ये रहती है कि लेट्स फॉर से अगर आज आपने मॉक दिया है 2 घंटे का, तो आज के लिए छोड़ दो उस मॉक को, क्योंकि आपने अपने आप को 2 घंटे के लिए ऑलरेडी एग्जॉस्ट कर लिया है. सो लीव योरसेल्फ फॉर टुडे, टेक अ डे एंड एनालाइज इट टुमारो, ताकि आप उस दिन बैठ के शांति से ये एनालाइज कर सको कि आपने कहाँ गलती की, क्या आपने सिली मिस्टेक्स की, क्या आपका पेपर कंप्लीट नहीं हो पाया. सो दैट इज समथिंग दैट यू शुड बी डूइंग. एंड इफ वी टॉक अबाउट द अप्रोच, अगर आप एक ऑनलाइन मॉक दे रहे हो तो आपको ऑनलाइन मॉक में तो क्लियरली आपके सामने दिख जाता है. ऑन योर स्क्रीन यू गेट टू नो कि आपने कितनी गलतियां की, कहाँ गलतियां की. बट अगर आप एक ट्रेडिशनल अप्रोच से एक मॉक दे रहे हो, तो आप अपनी OMR शीट को लेकर बैठो एंड सी दैट व्हाट ऑल मिस्टेक्स दैट यू हैव डन. कौन सा ऐसा सेक्शन था जिसमें आपने सबसे ज़्यादा गलतियां करी हैं. वो उसके लिए मैं स्टूडेंट को हर बार एक सजेस्ट करती हूँ कि एक प्लेन
शीट ऑफ पेपर आपके पास हमेशा होना चाहिए जब भी आप एनालाइज करके बैठ रहे हो. पांचों सेक्शंस को आप लिख लो. इस दिस सेक्शन इन दिस मॉक कंटेंट 30 मार्क्स. इसमें से मैंने इतना स्कोर किया, इसमें ये गलतियां मैंने करी. सो एक वो एरर चार्ट जब आपके सामने होता है, और जब आप फर्स्ट मॉक से लेके आप 20th मॉक भी अगर आप देखते हो तो वो आपको पूरा आपका एक वो जर्नी दिखती है कि फर्स्ट मॉक में आपने इतना स्कोर किया था, उससे करते करते आप इस मॉक तक आ गए हो. सो वो एरर लॉग बनाना, वो एरर चार्ट बनाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लैट एग्जामिनेशन से जस्ट एक हफ्ते पहले जब आप अपनी वो सारी शीट्स उठा के देखोगे तो आप देखोगे कि अगर आपने टोटल 40 मॉक्स भी दिए तो फर्स्ट मॉक से लेके 40 मॉक तक आपने एक ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट दिखाया होगा, और वो आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप देगा that yes, this is how I have moved ahead in the CLAT preparation journey. So maintain your analysis chart. That is the strategy that I would suggest to the students. So ma'am, basically you mean that mock analysis is much broader than just reviewing. You are not just reviewing it, you are basically analyzing it. Of course. So ma'am, for instance, suppose if we have to explain or we have to tell to a student, like for any particular section, let's just say logical reasoning. So a student has just gone through his sectional analysis of logical reasoning, and he just got to know that he was just able to attempt just get 15 questions correct out of 25. So the 10 marks, the bridge of this 10 marks, how a student can make that bridge lesser or fill that gap? What should be the analysis approach of all the sections are same, or it should be different for each section? सी अब वही है, सेक्शन टू सेक्शन डिपेंड करता है. इफ वी टॉक अबाउट लीगल रीजनिंग, इट इज ऑल द गेम प्ले ऑफ कॉन्सेप्ट्स. आप सिर्फ उसको प्रैक्टिस से सॉल्व नहीं कर सकते हो, आप उसको ठीक नहीं कर सकते हो जब तक आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी. आप लीगल में कितनी भी प्रैक्टिस कर लेना, आपके कॉन्सेप्ट सही नहीं होंगे, बिकॉज एवरी पैसेज होल्ड्स डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स. सो यू विल हैव, यस एग्जैक्टली. सो आपको वो प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड वाली अप्रोच, आप प्रिंसिपल को किस तरीके से कॉम्प्रिहेंड कर रहे हो, तो वो आपका डिपेंड करेगा टू सॉल्व द लीगल रीजनिंग सेक्शन. अगर मैं वहीं पर बात करूं आपके लॉजिकल, इंग्लिश और कॉन्ट्स जैसे सेक्शन की, दे टोटली डिपेंड्स अपॉन प्रैक्टिस, क्योंकि आप इनमें जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतनी टेक्निक्स को डिड्यूस कर पाओगे. सो दैट इज व्हाई इट इज टोटली अ सेक्शनल बेस्ड अप्रोच. अगर आप एक लीगल रीजनिंग का सेक्शन कर रहे हो तो सबसे पहले मेक श्योर दैट योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर. बट इफ यू आर गोइंग अहेड विद योर कॉन्ट्स, लॉजिकल एंड द अदर सेक्शंस, देन योर प्रैक्टिस शुड बी द की रोल. सो ये ब्रिज तभी कम हो सकता है जब आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी प्लस द प्रैक्टिस दोनों पे फोकस करो साइमल्टेनियसली, एंड दैट इज हाउ यू कैन इंप्रूव योर स्कोर्स. सो मैम बेसिकली यानी कि अगर कोई स्टूडेंट अगर लॉजिकल का सेक्शन देख रहा है तो उसको ये भी देखना है कि उसका वो क्वेश्चन क्यों गलत हुआ, क्या रीज़न है, जो उसने सोचा वो क्यों गलत है, और जो सही है वो उसने क्यों नहीं मार्क करा. तो बेसिकली जब वो पर क्वेश्चन इस तरीके से फॉलो करेगा तब उसको समझ में आएगा कि अच्छा मेरा लॉजिक ही गलत था, एंड देन उसकी थिंकिंग अप्रोच ही चेंज हो जाएगी. बिकॉज एज वी नो कि क्लैट इज नॉट अ मेमोरी बेस्ड एग्जाम, रादर इट इज अ एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम. राइट. सो मैम आई वाज आल्सो वंडरिंग कि लाइक what should be the strategy for time management? How should a student distribute those 120 minutes across those 5 sections? देखो 120 मिनट्स फॉर 120 क्वेश्चंस लगता कम है, बट अगर आपने बहुत तरीके से प्रिपरेशन की है, इट इज़ 100% डूएबल. वाई? बिकॉज एक सेक्शन ऐसा है जो हाईएस्ट वेटेड सेक्शन है और उसमें आप सबसे कम टाइम डिवोट कर सकते हो, विच इज़ द जीके करंट अफेयर सेक्शन. जीके करंट अफेयर सेक्शन में if you have studied your GK current affairs from the month of January to November, so आपको आता है तो आता है. अगर आपने नवंबर तक बैकलॉग बना के रखा हुआ है, then nothing can be done for that section. आपको पेपर में भी नहीं आएगा वो सेक्शन, right? But if you are good to go for your GK current affairs, you have not created any backlogs, you have done your one-liner current affairs, everything you know about it, then what I feel is आप लीगल रीजनिंग के सेक्शन को 20 to 25 मिनट्स में सॉल्व करने का ट्राई करो. अगर आपने 30 से 32 क्वेश्चंस उस 25 मिनट्स के स्पैन में खत्म कर दिए, देन दैट इज द बेस्ट टाइम फॉर द लीगल रीजनिंग सेक्शन. स्टूडेंट्स का मेन कंसर्न हमेशा ही रहता है दैट दे टेक 30 to 35 मिनट्स फॉर सॉल्विंग दैट वन सेक्शन. बट अगर आप यही अपनी पावर प्रिपरेशन जर्नी में ले लेते हो, दैट यू सॉल्व द लीगल रीजनिंग सेक्शन विद इन 25 मिनट्स, दैट इज द बेस्ट थिंग. Then I think that 15 minutes should be allotted, 15 to 20 minutes should be allotted to your GK current affairs section. बहुत easily doable है, tried and tested by many of the students that they can complete GK current affairs का section within 15 to 20 minutes because they know that yes, इस country में ये हुआ, आपने mark कर दिया. So आपको आता है तो आता है.
सो 40 मिनट्स में 40 to 45 मिनट्स में आपके 2 हाईएस्ट वेटेड सेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं. देन फॉर इंग्लिश एंड लॉजिकल यू शुड गिव एटलीस्ट 20-25 मिनट्स. एंड जब आप 25 मिनट्स भी अगर दोनों सेक्शंस को दे देते हो, देन यू विल सी जो कॉन्ट्स आपका सबसे डरावना सेक्शन होता है स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट्स बहुत डरते हैं उस सेक्शन से, जिनके पास मैथ्स नहीं होती, सारी चीजें नहीं होती, तो उनके पास वो सारा टाइम अलॉट करने के बाद भी 30 मिनट्स का स्पैन बचता है कॉन्ट सेक्शन के लिए, अगर वो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं. सो आई फील दीज आर द बेस्ट टाइमिंग्स फॉर ईच सेक्शन, बट देन ऑल्सो इट इज टोटली डिपेंडेबल अपॉन द स्टूडेंट कि वो कितना कमांड बना रहे हैं अपने सेक्शंस पे, देन ओनली दे विल बी एबल टू गेट 30 मिनट्स फॉर कॉन्ट्स. So yes, this is the strategy they should follow for all the 5 sections. So ma'am, what would you like to say about this phobia of maths? Like, why students they pretend like this is the the toughest section, and in fact it is just asked for 15 marks, I guess, only 12, 10 to 12 10 to 12, yes. maximum 15 marks. So ma'am, do you really think that these 15 marks they are so important that a student creates a phobia inside their and mind, they create a burden in their head, and they tend to they tend to believe that I'll just skip this section totally. So are you in this favor that so should a student skip quants totally? Because what I feel is that I think quants is a certain section which can literally make or break this exam for you, because most of the students who are scoring in the range of around 75 to 80 marks in the real exam as well, they follow this approach only, that I'll just skip this section and I'll push my scores in the other 4 sections. And the students who are able नहीं to कर पाते हैं, वो भी नहीं हो पाता मैम. इसीलिए 75-80 में अटक जाता है स्कोर. तो मैम, what would you like to say about this? And any student who has a phobia of maths, like in what would you like to just say to them directly, and how can they can work on this phobia and change their mindset as a whole, and they tend to think that this is not the toughest section, rather it is the most easiest section. Easiest in the sense, because if a student is able to reach to a particular answer, so he can match that answer with the option, and he'll just be clear that this particular answer is correct. So what would you like to say about this phobia, ma'am? See, सबसे पहले तो ना, जो स्टूडेंट्स who think कि क्लास 11-12 की मैथ्स बहुत मुश्किल होती है, हमारे पास क्लास 11-12 में मैथ्स नहीं थी, तो हम कैसे परस्यू करेंगे इस कॉन्ट्स के सेक्शन को. सो सबसे पहले जस्ट गेट दैट थिंग स्ट्रेट इन योर हेड दैट क्लास 11-12 की मैथ्स आपसे नहीं पूछी जाती है क्लैट एग्जामिनेशन में. दे आर आस्किंग यू द बेसिक एलिमेंट्री मैथ्स जो आपने क्लास 8-10 तक पढ़ी है, रेशियो, प्रोपोर्शंस, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, इसका वो भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हैं. दे आर आस्किंग यू इन द फॉर्म ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन. आपको चार्ट्स बनाने हैं, आपको टेबल्स बनानी है, फिर डेटा को कॉम्प्रिहेंड करके आपको अपने पैसेज को सॉल्व करना है. तो सबसे पहले तो दिमाग से ये फोबिया निकाल दो कि कॉन्ट्स अगर आपको मुश्किल लग रहा है क्योंकि आपके पास क्लास 11-12 में मैथ्स नहीं थी, तो उसका कोई मैटर ही नहीं करता, उसकी कोई रेलेवेंस ही नहीं है अगर आपके पास क्लास 11-12 में मैथ्स नहीं है. टॉकिंग अबाउट कि उनको क्या ये सेक्शन स्किप करना चाहिए, आई वुड से 100% नो. वाई? बिकॉज अगर आपने एक सेक्शन को स्किप ही कर दिया, और अगर कोई भी एक स्टूडेंट है जो आपके सामने सेम स्कोर पे है, लेट्स फॉर से यू आर ऑल्सो स्कोरिंग 80 एंड द पर्सन इज ऑल्सो स्कोरिंग 80, बट उस पर्टिकुलर पर्सन ने सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए कॉन्ट्स के, और वो तीनों चारों सही हो गए. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द होल कॉन्ट सेक्शन. 3-4 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर दिए और वो सही हो गए, तो द पर्सन हैज रीच्ड द स्कोर ऑफ 84. तो क्या उससे उसको बेटर एनएलयू नहीं मिलेगा? 100% मिलेगा, राइट? 4 मार्क्स में बहुत ज्यादा एनएलयू का डिफरेंस आता है. 2 एनएलयूज तो वो एटलीस्ट ऊपर चला ही जाएगा दैट पर्सन, राइट? तो छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है. आप छोड़ नहीं सकते हो इस सेक्शन को, बिकॉज अगेन एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड, इट इज द ब्रेक और द मेक सेक्शन. अगर आपने 90-95 प्लस स्कोर कर लिया और आपके बाद कॉन्ट्स का टाइम है करने का, तो आई वुड डेफिनेटली टेल स्टूडेंट कि अपनी प्रिपरेशन जर्नी में भी कॉन्ट्स पे बराबर ध्यान दो, और पेपर में भी करके आओ सॉल्व. एटलीस्ट आप अगर 10-12 क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम नहीं है, 7-8 तो करके ही आओ. उसमें से कुछ तो ठीक होगा, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ तो ठीक होंगे क्वेश्चंस. सो दैट्स व्हाट आई से, दैट स्टूडेंट्स मस्ट अटेम्प्ट द कॉन्ट्स का सेक्शन, बिकॉज अगर नहीं अटेम्प्ट करते हो तो आप बहुत पीछे चले जाते हो उन स्टूडेंट से जिन्होंने एटलीस्ट 2-4 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट किए हैं. सो दैट इज द स्ट्रैटेजी. बिल्कुल छोड़ना नहीं है, 100% अटेम्प्ट करके आना है, और इसीलिए वो 120 मिनट्स में 120 क्वेश्चंस को इंकलकेट करने की प्रैक्टिस आप अभी से करो अपनी प्रिपरेशन जर्नी में. तभी आप एक वो रैंक होल्डिंग वाली स्टेज पे पहुंच पाओगे व्हाइल यू अपीयर फॉर योर क्लैट एग्जामिनेशन. तो मैम, दिस इज ट्रू, राइट? बिकॉज 1-2 मार्क्स से ही AIR बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाती है, एंड दे कैन लिटरली
open new doorways for you. So ma'am, one more thing, like I would just like to know कि should a student or any aspirant, they should be guessing the answers in mocks or they should be skipping the doubtful questions? सी इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन. बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि तुक्का मार के आ जाएंगे, स्टूडेंट ऑफ द ईयर की तरह जय माता रानी करके आ जाएंगे. right. वो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए क्लैट एग्जामिनेशन में, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग होती है. आप वो चीज़ तब कर सकते हो जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो फिर माता रानी जो आपका श्रद्धा दिखाएंगी तो आप उसमें कर सकते हो. बट क्लैट में गेसिंग अप्रोच ओनली वर्क्स व्हेन जब आपकी नेगेटिव मार्किंग ना हो. बट क्लैट में अगर आपकी नेगेटिव मार्किंग है तो आप ये गेसिंग वाला ऑप्शन तभी प्ले कर सकते हो जब आपको प्रॉपर एलिमिनेशन मेथड पता हो. अगर आपने 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया और आप सिर्फ 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज्ड हो, तो जिसमें भी आपकी 70 to 80% इंट्यूशन काम कर रही है, आप उसको मार्क करके आ सकते हो. बट अगर आप 4 ऑप्शंस में सोचो कि एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आता और उन 4 ऑप्शंस में से अगर आप गेस करने की कोशिश कर रहे हो, देन आई वुड नॉट सजेस्ट दैट यू शुड गो फॉर द गेसिंग टेक्निक. उसमें आपकी 100% चांसेस हो जाते हैं गलत होने के. बट यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपने 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया तो आपको पता है 2 ऑप्शंस कौन से हैं जिसमें से आपको गेस करना है. सो इफ यू नो द एलिमिनेशन टेक्निक कि हाँ ये 2 ऑप्शंस तो 100% रॉन्ग है, देन ओनली गो फॉर द गेसिंग टेक्निक. अदरवाइज यू शुडंट बी गोइंग फॉर द गेसिंग टेक्निक, बिकॉज अदरवाइज यू विल लूज आउट नॉट जस्ट 1 mark, you will be losing out 1.25 marks for your that particular question, including the negative marking. So yes. Right ma'am. So ma'am, basically you are just saying that ऐसे तुक्के नहीं मारने चाहिए, इफ पॉसिबल इंटेलिजेंट गेसेस लगाने चाहिए Exactly. यूजिंग द एलिमिनेशन टेक्निक. Exactly. और रादर छोड़ दे उसको, छोड़ दो. बिकॉज क्या होगा, एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है. अगर आपने उस मोमेंट पे गेस कर दिया और आपके क्वेश्चंस गलत होते चले गए, तो आप ज़्यादा मार्क्स नेगेटिव मार्किंग में लूज आउट कर दोगे. तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए. यू शुड बी फोकसिंग अपॉन योर एक्यूरेसी. आप जितना ज़्यादा एक्यूरेट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे, दैट इज हाउ इट विल बी गिविंग यू अ बेटर स्कोर. अदरवाइज अगर आपने जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेसिंग कि चलो ठीक है ये दैट इज नॉट हाउ इट इज वर्किंग. इट इज नाउ क्लैट एक वो एग्जाम नहीं रह गया है जो 2015-16 में हुआ करता था. नाउ इट हैज बिकम अ सेंट्रल लेवल, हाई लेवल एग्जामिनेशन. बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है. हर साल 10-20 हज़ार बच्चे ऐड होते हैं. लॉ इतना ट्रेंडिंग करियर बन गया है दैट एवरी 3rd और 4th पर्सन इज गोइंग फॉर लॉ. सो ये एक बहुत सेंट्रल लेवल का एग्जामिनेशन है. इसको आप हल्के में नहीं ले सकते हो. यू कैन नॉट टेक इट लाइटली, एंड दैट इज वेयर आई फील कि गेसिंग शुड नॉट work in this one paper. It should 100% be the person who just knows the elimination technique, and then only they should go for the intelligent elimination and go for the guessing technique. Right ma'am. So ma'am, how many mocks should a CLAT aspirant take weekly? वीकली. Yes ma'am. देखो, अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग से उनकी प्रिपरेशन जोड़ने की, लेट्स फॉर से इफ यू आर समबडी हु इज प्रिपेयरिंग फ्रॉम 1 year फॉर योर क्लैट एग्जामिनेशन. अगर आपका दिसंबर में एग्जाम होता है और आप पिछले दिसंबर से एग्जाम की तैयारी करना शुरू करते हो, तो सबसे पहले तो आप स्टार्टिंग में 15 days में एक मॉक दो. उसमें देर आर चांसेस दैट यू माइट स्कोर नेगेटिव ऑल्सो, बट यू डू नॉट हैव टू डिमोटिवेट योर सेल्फ, बिकॉज आपने सिलेबस ही कंप्लीट नहीं किया होता है. तो वो सिर्फ और सिर्फ एक रियलिटी चेक होता है कि क्या आप पैसेजेस को पढ़ पा रहे हो, क्या आप 120 मिनट्स में 120 क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो, क्या आप अपनी स्पीड पे आपको और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है. सो दैट इज़ वॉट इन द वेरी इनिशियल द स्टूडेंट शुड गिव एटलीस्ट 1 mock in 15 days. जैसे जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होते जाए, वैसे वैसे यू विल हैव टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ योर मॉक्स. जब आपका 70-80% सिलेबस हो जाए, देन मेक इट 1 mock in a week. And when your 100% syllabus is over, then the person should give at least 2 mocks in a week. Every 3rd day एक mock देना चाहिए. They should know that yes, this is the problems that I'm facing in the mock. And when your CLAT examination is near, if we talk about CLAT UG 2026 now, so it's just in next 30-40 days, Yes, right? ma'am, right. So now these students at least till November 3rd week उनको देने चाहिए at least 2 to 3 mocks if they have the bandwidth. तो उनको वो पता चलेगा हमारे वीक एरियाज क्या हैं. डिमोटिवेट नहीं होना है. आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है, जितनी अच्छी तैयारी आपने की है उसके फ्रूट्स आपको 100% मिलने वाले हैं. बट दिस विल गिव यू अ रियलिटी चेक. इफ एनी सेक्शन इज वीक, वो आप अभी 30 days में इंप्रूव करके अपने डी डे पे, द क्लैट एग्जामिनेशन पे आप अपनी सही कर सकते हो. सो दैट इज वाई नाउ यू शुड बी गिविंग एटलीस्ट 2 to 3 mocks इन अ वीक. एंड आपको स्टॉप कर जाना है जस्ट 1 week बिफोर योर क्लैट एग्जामिनेशन, बिकॉज देन यू डू नॉट हैव टू ओवर एग्जॉस्ट योर सेल्फ. अगर आप एग्जॉस्ट कर लोगे तो शायद ऐसा हो सकता है दैट यू माइट डिमोटिवेट योर सेल्फ, आपका कॉन्फिडेंस लूज आउट हो जाए. सो 1 week पहले आप रुक जाना. आपका अगर एग्जामिनेशन December 1st week में है, सो यू शुड बी गिविंग मॉक्स टिल द लास्ट वीक ऑफ November.
and then yes, 2 to 3 mocks in a week is absolutely good to go and enough for their preparation. Ma'am, you mean 2 to 3 mocks with proper detailed analysis? Yes, 100%. ये सिर्फ ये नहीं है कि नंबर के चलते हाँ मैम ने बोल दिया 2-3 मॉक्स देने हैं तो हम 2-3 मॉक्स देंगे और खत्म कर देंगे. एनालिसिस इज 100% इम्पॉर्टेंट. अगर आपको एनालिसिस के लिए टाइम नहीं मिल रहा है देन आप 2 मॉक दे दो, 3 मत दो, बट प्रॉपर क्वालिटी मॉक्स दो. क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, दैट इज द वन थिंग दैट आई सजेस्ट टू द स्टूडेंट्स कि क्वालिटी मॉक्स दे रहे हो, प्रॉपर एनालिसिस कर रहे हो, तभी उस मॉक का कोई मतलब है. अदरवाइज डू नॉट अटेम्प्ट ओनली अगर एनालाइज करने का टाइम नहीं है. जस्ट फॉर द सेक ऑफ गिविंग मत दो, एनालाइज एंड देन रिवाइज वॉट एवर मिस्टेक्स दैट यू हैव कमिटेड, रिवाइज योर कॉन्सेप्ट्स अगेन एंड देन रीडू द मॉक. So this is the strategy that I'll tell the students. So ma'am, basically you are weighing on the thing that 2-3 detailed analyzed mocks are better than 5-6 mocks if you are not analyzing. 100%. That's what I'm saying. That quality over quantity matters. आप कितने भी आज मैं 100 मॉक दे दूं बैठ के, राइट, दैट डज नॉट मेक अ डिफरेंस. बट इफ आई एम गिविंग क्वालिटी 20 मॉक्स, आई हैव डन द प्रॉपर एनालिसिस, आई विल गेट टू नो दैट yes, this is my weakest section, I have to work upon this. Quality mocks would only give you the reality check. The numbers would not give you the reality check, because if I sit today, give 10 mocks continuously, मेरा स्कोर वही सेम रहने वाला है क्योंकि मैंने एनालिसिस किया ही नहीं, मुझे पता ही नहीं मैं गलती कहाँ कर रही हूँ, मैं रिवाइज कहाँ जाके करूँगी. सो दैट इज वेयर the quality should matter, not the quantity. All right. Ma'am, what would you like to talk about mindset? Like what should be the proper mindset before attempting a mock? देखो, माइंडसेट का सिर्फ इतना चीज है, द स्टूडेंट को सबसे पहले तो फोबिया हो जाता है, मॉक देने बैठना है आज, right. कैसे देंगे, बहुत बहुत डर लग रहा है. लेजीनेस भी एक चीज आ जाती है, लेजीनेस, स्टैग्नेंसी, बस ऐसे लगता है कि हाँ चलो ठीक है, कर लेंगे, हो जाएगा. बट वो जो एक माइंडसेट है ना, वो मॉक देने से पहले वाले दिन सिर्फ ये सोचना है कि मैं कोई जंग लड़ने नहीं जा रहा हूँ, दिस इज समथिंग फॉर माई सेल्फ ओनली. आई विल गेट अ रियलिटी चेक कि मुझे कितना और मेहनत करने की जरूरत है, तो ये मेरे लिए ही होने वाला है मॉक. सो दैट इज वेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट योर माइंडसेट शुड बी वेरी रिलैक्स्ड. आपने बहुत मेहनत की है, वो आपका मॉक भी रिफ्लेक्ट करेगा. यू हैव टू बी वेरी काम, यू हैव टू बी वेरी रिलैक्स्ड. एक दिन पहले अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करो, सारी चीजें करो, एंड देन ओनली यू शुड अटेम्प्ट योर मॉक एंड गो अहेड विद योर प्रिपरेशन. डर नहीं बिठाना है किसी भी चीज़ का, कोई जंग थोड़ी है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर देगी. यू शुड बी नोइंग दैट जितना काम माइंड से आप अपना मॉक को दोगे, दैट इज हाउ फ्रूटफुल इट गोना बी. जितना क्यूटिक माइंड से आप अपना मॉक दोगे, उतना ही आप घबरा जाओगे एंड यू माइट नॉट डू द क्वेश्चंस करेक्ट. सो योर माइंडसेट शुड बी वेरी रिलैक्स्ड दैट yes, this is just a piece of paper, I'm gonna do it fine, and yes, that is how they are gonna solve it in a good way. All right. Ma'am, since we are emphasizing so much on mock analysis, and suppose I am a CLAT aspirant and I am very much weak in legal reasoning, and which is, we all know legal reasoning is the crux of CLAT exam. Highest weighted So ma'am, section. how through mock analysis I can improve my legal reasoning section? ठीक है. See, for the legal reasoning section, I emphasize on one thing, which is the sectional tests. Let's first say the four most important topics of legal reasoning are criminal law, torts, constitution, and the contracts, right? So if these four are the most important sections of your legal reasoning section, एक एक सेक्शन को कवर करते जाओ एंड गिव देयर सेक्शनल टेस्ट. लेट्स फॉर से अगर आज मैंने क्रिमिनल लॉ में मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड पढ़ा, तो उसका एक असाइनमेंट सॉल्व करो, उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करो, एंड देन ओनली यू विल बी गेटिंग टू नो कि यस, दिस particular topic of this one particular section is very strong for me. Right. And that is how when you complete your criminal law, तो एक पूरा assignment 100-150 questions का mix assignment दो criminal law का, so that you will get to know कि हाँ ये section तो मेरा अच्छे से हो गया है. और legal reasoning section में score ना आने का reason ही सिर्फ यही है कि आप पहले सोचते हो कि हम पूरा legal reasoning का section, we will cover up the whole legal reasoning section and then we'll go ahead to give the full length mock. That does not work for legal reasoning. Legal reasoning में the basic थिंग इज द सेक्शनल टेस्ट कि आप क्रिमिनल लॉ के सेक्शनल्स दो, फिर आप टॉट्स को सेक्शन बाय सेक्शन आप अपनी स्ट्रेंथ बनाते जाओगे, तो आपके लीगल रीजनिंग के मॉक में ऑलरेडी स्कोर इंप्रूव हो जाएगा, बिकॉज आपको हर सेक्शन के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पता चल जाएंगी, एंड दैट इज हाउ यू कैन इंप्रूव योर स्कोर इन लीगल रीजनिंग. How to track my progress through mocks? I mean, is there any way that through which I can track my progress? See, Ayush, this is something that I have personally tried and tested. अगर मैं किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने बैठ रही हूँ, सो आई
contain myself with a error log notebook कि this is the first mock I attempted on this is this date. इस सेक्शन में मेरा इतना स्कोर आया और ये गलतियां मैंने इस सेक्शन में की. Let's talk about legal reasoning section only. I misinterpreted the principle. मैंने silly mistake कर दी, मैंने not word नहीं पढ़ा क्वेश्चन में, ठीक है. तो वो एरर लॉग आप वहाँ पे अपना हर एक सेक्शन का बनाते जाओ. पूरा मॉक का एक सिंगल पेज A4 साइज शीट आपके सामने होना चाहिए दैट यस दिस इज द मॉक आई गेव ऑन दिस डे, 5 सेक्शंस, ये गलतियां. आप ये चीज अगर आप देखोगे, अगर आप ये पूरा 1 ईयर की कंसिस्टेंसी में इफ यू मेंटेन दिस वन पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी दैट यू हैव 50 शीट्स फॉर योर 50 मॉक्स दैट यू हैव अटेम्प्टेड, यू विल सी फर्स्ट मॉक से लेके इफ यू हैव स्कोर 20 25 एंड देन नाउ यू आर स्कोरिंग 100 प्लस. सो दैट इज समथिंग दैट विल टेल यू दैट यू हैव कम अ वेरी लॉन्ग वे कि आपने 20-25 मार्क्स स्कोर करते करते नाउ यू आर स्कोरिंग 100 प्लस. सो दैट विल गिव यू अ कॉन्फिडेंस बूस्ट अप कि कहाँ से मैंने शुरू किया था और मैं कहाँ पहुंच गया हूँ, राइट. सो दैट इज वन थिंग दैट आई सजेस्ट एवरीवन कि मॉक को सिर्फ एनालाइज करना, ये सारी चीजें बिल्कुल प्राइमरी हैं, बट वन मोर थिंग दैट यू शुड ऐड इन योर शेड्यूल इज दैट यू मेंटेन योर एरर लॉग कि हाँ दिस इज हाउ आई शुड मूव अहेड. एंड इतना मेरे को ये करना ही करना है कि एनालिसिस के बाद मेरे पास वो 1 शीट का चार्ट हो ताकि रिविजन के वक्त मुझे कुछ और उठाने की जरूरत ना पड़े. बस उन शीट्स को आई विल सी व्हाट ऑल मिस्टेक्स आई डिड and then you're good to go for your revision part as well. Right, ma'am. So basically they should be writing a takeaway from each. Yes, flashcards बना लो छोटे छोटे, short notes बना लो, sticky notes बना लो जो आप आगे अपने आप चलते फिरते जहाँ पर भी आपको पता है कि डेली इस रूम में मेरा जाना होता ही होता है, वहाँ पे sticky notes लगा दो. आपकी आंखों के सामने आएगा ही आएगा वो. So that is the best thing कि जो चीज़ आपको डेली दिख रही है, आप ब्रश भी तो डेली करते हो ना, खाना भी आप डेली खाते हो, तो आप कहीं पर भी जा रहे हो, सो यू शुड सी दैट कि हाँ ये गलती मैंने इस दिन की थी, अब अगले मॉक में मुझे ये चीज नहीं करनी. सो दैट इज द थिंग दैट यू शुड बी डूइंग फॉर योर मॉक्स. Alright, ma'am. Ma'am, many students also mention that their mock scores fluctuate a lot. So how to deal with this emotionally? Because it can literally break anyone emotionally. So is there any particular way or what suggestion would you like to give to tackle this emotionally? देखो स्टार्टिंग 4-5 मंथ्स के प्रिपरेशन में ना बहुत दिक्कत आती है. स्टूडेंट्स इमोशनली बहुत ड्रेन्ड आउट हो जाते हैं कि मॉक स्कोर्स बढ़ ही नहीं रहे हैं. वो सिर्फ इसीलिए नहीं बढ़ रहे हैं बिकॉज आपकी कॉन्सेप्ट्स अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं. एज सून एज योर 4-5 मंथ्स आर ओवर एंड यू आर गुड टू गो विद योर सिलेबस, आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, देन अगर आपके स्कोर्स नहीं बढ़ रहे हैं तो आपको अपने कॉन्सेप्ट्स पे दोबारा जाना है. और इमोशनली आप इस चीज़ को कैसे हैंडल करोगे? सिर्फ अपने ड्रीम एनएलयू की पिक्चर अपने आंखों के सामने रखो कि आई कैन नॉट गिव अप बिकॉज ऑफ दिस वन पर्टिकुलर कॉलेज, इसमें तो मुझे जाके रहना है, मैं जाऊंगा ही जाऊंगा. वो पिक्चर अपने रूम में अपनी साइड टेबल पे बस लगा के रखो दैट यस दिस इज माय एम, आई एम गोना स्कोर दिस रैंक, आई हैव टू गो हियर, NLSIU बैंगलोर शुड बी योर टारगेट, नालसर हैदराबाद शुड बी योर टारगेट. सो वो पिक्चर्स आपके दिमाग में चलती रहनी चाहिए दैट यस माय पेरेंट्स हैव इन्वेस्टेड इन मी, माय मेंटर्स हैव इन्वेस्टेड इन मी. सो वो मोटिवेशन खुद को देनी है दैट यस आई एम डूइंग इट फॉर समथिंग. और जब उस दिन पहुंच जाओगे ना, वो NLSIU में फर्स्ट स्टेप जो लोगे, वो मोटिवेशन लेकर आओ अपने दिमाग में कि वो कितना एक प्राउड मोमेंट होगा जब आपके पेरेंट्स आपको छोड़कर आएंगे एंड देन यू विल बी सीइंग दैट हैप्पी टीयर्स इन देयर आईज दैट यस आवर चाइल्ड हैज डन समथिंग. सो दैट इज द मोटिवेशन दैट यू नीड. ये मॉक स्कोर्स कोई आपको डिमोटिवेट करने के लिए नहीं है, सिर्फ आपको एक रियलिटी चेक देने के लिए है. Right, ma'am. So it is all upon the mindset which we were just talking about. 100%. कुछ स्टूडेंट्स ना छोड़ भी देते हैं अपनी प्रिपरेशन, नहीं हो रहा है छोड़ दो. क्यों छोड़ना है? अगर आपने कुछ सोच समझ के इस करियर में एंटर किया है, दिस इज नथिंग. व्हेन यू एंटर इनटू द प्रॉपर लॉ फील्ड, जब आप एक लॉयर बन भी जाओगे तो क्या आप उस करियर को छोड़ दोगे? आपके पास इतने सारे लिटिगेशन केसेस आएंगे, यू विल डील विद सो मच. इफ यू टर्न आउट टू बी अ कॉर्पोरेट लॉयर, आपको 10-10 11-11 बजे तक ऑफिस में बैठना पड़ेगा. तो अगर हर चीज छोड़ने की आदत लग गई, देन यू कैंट डू एनीथिंग. आई एम सेइंग इट वेरी ब्लंटली, आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे. हाँ, सो दैट इज द ओनली अप्रोच दैट यू शुड बी फॉलोइंग कि किसी भी चीज को शुरू किया है तो उसको खत्म करना है. यू कैन नॉट लीव इट इन बिटवीन. सो यस, दैट इज द होल माइंडसेट दैट दे शुड फॉलो. Right, ma'am. So it's all about the mindset. Exactly. Alright. Ma'am, should a student try to finish the entire paper or they should be focusing more on accuracy part?
देखो पेपर तो कंप्लीट करना ही करना है आपको, 120 मिनट्स में 120 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हों, ये तो आपको मेक श्योर करना ही करना है। Right. बट अगर लेट्स फॉर से अगर आपका स्पीड ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हो पा रहा है, तो आप फिर अपनी एक्यूरेसी पे फोकस करो कि जितना आता है उतना आप 100% एक्यूरेसी से करके आ रहे हो, जो कर रहे हो वो बहुत आपका अच्छे से होना चाहिए। बट स्टिल आई वुड सजेस्ट दैट ड्यूरिंग द कोर्स प्रिपरेशन जर्नी आपको 100% अपना ये मोटिव रखना है दैट यू विल बी सॉल्विंग 120 क्वेश्चंस इन 120 मिनट्स। accuracy matters the most, but then completion of the papers also matters. Right. So it is a like 50-50 approach कि बराबर बराबर चलनी चाहिए ये चीजें। मतलब किसी को मैं ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दे सकती, क्योंकि क्वेश्चन छोड़ के आओगे तो शायद कोई ज्यादा आपसे आगे निकल जाए, ज्यादा क्वेश्चंस right, अटेम्प्ट right. करके। और अगर आप एक्यूरेसी ज्यादा करके आते हो तो 100% आपका स्कोर अच्छा आने ही वाला है। सो 120 क्वेश्चंस 120 मिनट्स में कंप्लीट हों, ये भी टारगेट रखना है, एंड एक्यूरेसी के साथ हों, दैट शुड ऑल्सो बी योर टारगेट। तो अगर मैम इनिशियली किसी स्टूडेंट का वो अपने मॉक्स देने की इनिशियल स्टेजेस में अभी, तो अगर मान लीजिए उसको पेपर ख़त्म करने में 130 मिनट्स या 140 मिनट्स भी लग रहे हैं, तो डज दैट मैटर्स? या उस टाइम पे अपनी इनिशियल स्टेज पे ही अगर उसे लग रहा है कि मैं विद एक्यूरेसी कंप्लीट कर लूँगा पेपर, बट इट विल टेक मी अराउंड 140 मिनट्स, सो व्हाट वुड यू सजेस्ट कि क्या उसको 20 मिनट और एक्स्ट्रा दे के एक्यूरेसी पे वहाँ ध्यान देना चाहिए, या फिर वो वहाँ पे मतलब उसको 120 मिनट्स पे ही इनिशियल स्टेजेस की मैम वी आर टॉकिंग अबाउट? देखो इनिशियल स्टेजेस में आप चाहे कितना भी टाइम लगाओ, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। उस टाइम पे आपको सिर्फ अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, वो अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आना है दैट यस आई एम रेडी टू सॉल्व द क्वेश्चंस। उसके बाद आप स्पीड पे काम करो कि अगर आपकी एक बार एक्यूरेसी आ गई, अगर आपको लीगल रीजन पता चल गया कि मैं 45-50 मिनट्स लगा के भी 32 क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहा हूँ, तो स्पीड का चक्कर तो आपके हाथ में है। आप जल्दी जल्दी पैसेजेस पढ़ने की प्रैक्टिस करोगे, एंड दैट इज हाउ आपकी स्पीड तो ग्रेजुअली इंप्रूव हो ही जाएगी। बट अगर आपने स्टार्टिंग से ही गलतियां करनी शुरू कर दी तो एक्यूरेसी इंप्रूव करने में बहुत टाइम लग जाएगा। सो इनिशियल स्टेजेस में आपको चाहे कितना भी टाइम लग रहा है, दैट इज व्हाई आई टेल स्टूडेंट्स दैट स्टार्टिंग में यू शुड गिव नॉन टाइम सेक्शनल टेस्ट और नॉन टाइम फुल मॉक्स, कि कोई टाइमर का प्रेशर नहीं होना चाहिए आपके पास, आप अपने मॉक्स दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जैसे जैसे आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होती जाए, देन वर्क अपॉन योर स्पीड। Okay. Ma'am, one more thing I was wondering, like, as we all know, CLAT is a very heavy reading based exam, and all the questions they are being provided in passage form. Yes. So suppose there is a one very difficult passage, and any particular student is stuck in that passage. Yes. So what should be the mindset of that student? Should they skip the entire passage, because it is taking their time as well? So what would you like to say in this regard? देखो आई हैव सीन स्टूडेंट्स की अगर एक पैसेज पे अटक गए ना तो अटक ही गए, मतलब 15 मिनट्स 20 मिनट्स उसी पैसेज पे लगाते जाएंगे। अरे बाबा, उसके चक्कर में पूरा पूरा पेपर छूट जाएगा। सो व्हाट आई सजेस्ट इज कि अगर आपने एक पैसेज पढ़ा, आपने उस पे 5, 7, 8 मिनट्स लगा दिए, एंड नाउ यू नो कि ये पैसेज नहीं हो रहा है, जस्ट एक स्टार मार्क कर दो, कोई भी एक मार्क कर दो जो दैट यू नो, एंड देन कम बैक टू दैट पर्टिकुलर पैसेज एट द लास्ट। अगर आपके पास टाइम बचता है, उस पर्टिकुलर पैसेज को विच इज़ अ डिफिकल्ट पैसेज, डू नॉट मेक इट योर वीकनेस। उस पैसेज को वहाँ पर छोड़ के अपना कॉन्फिडेंस भी लूज आउट नहीं करना है कि वो एक पैसेज तो छूट ही गया। उस पर्टिकुलर पैसेज को छोड़ के अपने आगे का पेपर बिल्कुल शांत माइंड से करो, एंड देन लास्ट में इफ यू हैव टाइम, go to that passage, because if something is feeling difficult to you, that will feel difficult to the other students also. It is not that you will only feel difficult about that passage. So that is one thing that you have to follow, ki 7-8 minutes ke baad you don't have to waste any more time on that passage and move ahead with your question paper. All right. Ma'am, since many students they are skeptical about GK current affairs part, though we have already mentioned that it is one of the highest scoring section in CLAT, but still there are many people or many aspirants we can say who are very much skeptical about this particular section. So what should be the approach of those students who are appearing for any particular mock for this section? See, there is nothing to be skeptical about this one particular section. This is the highest weighted section and you have to pay 100% focus on this one section. अगर आप backlogs बना रहे हो तो that is the biggest mistake that you are doing. जो current affairs आप जनवरी से लेकर नवंबर तक हर महीने नहीं कर पाए, how can you assume that you will be able to complete 11 months of GK current affairs in just 2 months of your preparation? You cannot. You absolutely cannot. And that is where start from the very first day for your GK current affairs section. Highest weighted section है. अगर इसको
इसको नहीं किया, then they are not getting the top NLUs. That is for 100% surety. Right, ma'am. So if anybody, and you will see the students जिन्होंने जीके करंट अफेयर्स पे अपनी कमांड बनाई होती है, उनका कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल का Yes, होता yes, है, ma'am. बिकॉज दे नो दैट द स्टूडेंट्स हु हैव क्रिएटेड देयर बैकलॉग्स वो कहीं पर भी उनके सामने स्टैंड नहीं करता है. Right, ma'am. So that is the difference, that if you have a command, one student just visited us a few hours back, and the student told us that only, that I have the command on GK current affairs, and that is why the student was confident, right? So that is what you have to do also, कि आप कमांड बना के रखो जीके करंट अफेयर सेक्शन पे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ जनवरी, एंड देन ओनली यू आर गुड टू गो फॉर योर टॉप एनएलयूज, अदरवाइज Right, ma'am. डामाडोल है. Sorry, ma'am. So, ma'am, since many students, they feel very much nervous before every mock. So, how to overcome this mock anxiety? देखो वही है माइंडसेट वाला, अगेन द आंसर वुड बी सेम, दैट योर माइंडसेट शुड बी रिलैक्स्ड. You have prepared everything. All you have to do is that you are giving that mock for your like revision part, for you to know that this is the reality of your thing, which section is the strongest, which section is the weakest. डरना कुछ नहीं है उस चीज से. You don't have to create a phobia in your head that I'm going to give a mock and every such sort of thing. That should not be in your mind. You have to just sit and give it like the way you're going to give your CLAT examination, that yes कि हाँ मेरे को एक पेपर की तरह उसको सॉल्व करना है, and then yes, that's it. Right, ma'am. Ma'am, about the timing of the mock, so should students be taking mocks in morning, in evening, or is there any other ideal time for Yes. attempting the Yes. mock? I feel that every student must give mock from 2 p.m. to 4 p.m. only. The actual हाँ, the actual exam timings. Why? Because आपकी हैबिट बन जाती है. आप कितने बजे उठोगे, कितने बजे खाओगे, पियोगे, वो उन सब चीज़ों की हैबिट बन जाती है. तो अगर आप मॉक भी 2 to 4 p.m. पे दे रहे हो, you will get to know that yes, on that day I am gonna behave like this, and that is how I have attempted my 50-60 mocks that I have given. आपको 2 to 4 का नहीं टाइम मिल रहा है किसी दिन, तो उस दिन मत दे के नेक्स्ट डे पे पुश कर दो. सो बट ट्राई टू गिव इट ऑन द एक्चुअल डे टाइमिंग्स ओनली 2 to 4 p.m. because that will give you an eventual habit of appearing for the same on the CLAT examination day. So yes, not morning, not evening, but at least 2 to 4 p.m. पे जितने मैक्सिमम मॉक्स हो सके वो इसी टाइम पर दो, and then that totally depends upon your daily routine as well. Right, ma'am. Ma'am, about the mock environment, so like how can a student stimulate the real exam environment at their home? Is there any particular way for it? Exactly. That actually makes a difference. बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में या फिर अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के मॉक दे रहे होते हैं. Will you get that on your actual exam day? Absolutely not, right? So whenever you are attempting your mock, you should sit in a quiet room. Actual exam stimulations के अंदर आपको वो मॉक देना है. अगर आप ये कोशिश कर रहे हो कि मैं 2 घंटे बैठ के पूरे डिस्ट्रैक्शंस के साथ मॉक दे पाऊंगा, वो नहीं होने वाला है. वो क्लैट एग्जाम के डे पर भी नहीं हो सकता. So you will not get anybody sitting with you. So you just sit in a quiet room with a very calm mind, and then only you should be appearing for a mock. No distractions, nothing, and that is the ideal strategy for attempting a mock. All right, ma'am. Ma'am, what should students do in the last 10 minutes when the last 10 minutes are remaining? So, suppose any student has attempted all the sections. So, should they be reviewing it again and again, or should they just leave it? And for those who are not able to complete the exam, so what should be the strategy for the last 10 minutes? An ideal strategy which everyone can follow. Those who are able to complete the exam, or those who are not able to complete. Yes. See, for the last 10 minutes, I have just 2 pointers to mention. First, अगर कोई भी difficult passage था जो आपने review के लिए छोड़ा हुआ था, एक बार उस पे चले जाओ and see whether you are able to solve it or not. If you are not able to solve it, just keep it aside and then just revise the sections कि आपने कोई question blank तो नहीं छोड़ दिया, आपने सोचा था मैं इसको बाद में mark करूँगा. So वो अपनी OMR sheet के साथ अपने question paper को match कर लो that yes, I have attempted all the other questions and I am good to go for the पेपर सबमिशन, राइट. बट अगर आपका पेपर कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपको पैनिक नहीं करना है. जितना हो गया उसको रिवाइज करो. कोई क्वेश्चंस हैं जो आपको दिख रहा है ये शॉर्ट मेरा सही होने वाला है, अटेम्प्ट दैट इन द OMR एंड देन यस दिस इज द ओनली स्ट्रैटेजी. बिकॉज इफ यू पैनिक you are gonna mess up with the last 10 minutes of your exam, and then अगर आपने वो haphazardly अगर बहुत panic situation में आके कुछ भी mark कर दिया, then it will attract a negative marking for you. So try avoiding that and just at the last 10 minutes remain calm as you have been in the initial 110 minutes, and then you are good to go for your CLAT examination. All right, ma'am. Ma'am, we talked about mock strategy. We talked about
pre mindset before mock. So now my one last thing is कि what should be the post mock mindset for any aspirant, like एज आई ऑलरेडी मैंशन कि छोड़ दो, उस दिन के लिए छोड़ दो. all right, आपने 2 घंटे मॉक दिया है, 2 घंटे के लिए बहुत स्टैमिना चाहिए आपको, आप बैठ के मॉक दे रहे हो, देन लीव इट फॉर दैट डे. नेक्स्ट डे पिक दैट मॉक अगेन, एनालाइज इट प्रॉपरली, एंड मॉक देने के बाद तो एक अटमोस्ट सेटिस्फैक्शन ऑलरेडी मिलता ही है दैट यस ये मॉक मैंने दे दिया आज एंड आई एम डन विद माई टारगेट, राइट? सो दैट इज वॉट दे शुड फॉलो, दैट दे शुड बी गोइंग अहेड फॉर दैट डे. दे शुड रिलैक्स, दे शुड चिल, they should have good food, they should have good sleep and everything, and next day they should pick up that mock again, analyze their mistakes, and yes. so ma'am, do you really think that the our diet, our routine, and at what time we are sleeping, what time we are waking up, so all these things, do you think really directly or indirectly affect our marks? 100%. ये चीज़ें सुनने में बहुत बोरिंग लगती हैं, बट इफ़ योर डाइट इज़ नॉट गुड, इफ़ योर स्लीपिंग स्केड्यूल इज़ नॉट गुड, देन इट विल ओवर एग्जॉस्ट यू फॉर एवरीथिंग, एंड देन यू विल नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट योर मॉक और इवन द क्लैट एग्जामिनेशन ऑन द वेरी रियल डे with not a very calm mind, and then you will mess up with your whole paper and the mock, right? So your diet, your sleeping schedule, everything matters a lot, and you should be following it from the very day you have started your preparation. अच्छा खाना खाओ, take a healthy diet. I'm not saying that junk food छोड़ दो. I know this generation can't Right, do that, but reduce it to the time that you can. Improve your sleeping schedule. रात को 12-1 बजे सोने का कोई point नहीं है. Just try to sleep before 10 or like before 11. But ma'am, many students tend to cut their sleeping time just to devote it more for preparation. No. So what would you like to I say would to say them? that 11-12 के क्लास के स्टूडेंट्स को they should at least take 7 to 8 hours of sleep. Right. आप पूरे दिन में आपके पास 8 hours हटा के भी 16 घंटे का टाइम बचता है, जिसमें आप हर चीज़ कर सकते हो. आप स्कूल भी जा सकते हो, ट्यूशंस भी जा सकते हो, क्लैट के लिए भी पढ़ सकते हो. सो 16 घंटे में कोई चीज़ नहीं कर पाए तो वो आप 8 घंटे की अपनी नींद के समय पर भी नहीं कर नहीं, पाओगे. obviously. सो टेक प्रॉपर स्लीप, हैव प्रॉपर डाइट, एंड यस देन यू आर गुड टू गो फॉर योर एग्जाम. All right, ma'am. One last thing, just like, what's your final advice for the final 30 days before CLAT exam? Okay, so final say would be that you have done wonders in your CLAT preparation journey. First of all, do not demotivate yourself. अगर कोई भी ऐसा मॉक है अभी जिसमें स्कोर खराब आ जाता है, सो सिर्फ ये सोचना, अपने आप को एक बेनिफिट ऑफ डाउट देना दैट देयर माइट बी चांसेस कि आपने कोई हार्ड मॉक पिक कर लिया हो. CLAT एग्जामिनेशन उतना हार्ड नहीं आता है, मॉडरेट से डिफिकल्ट के बीच में द रेंज वैरीज. सो डू नॉट demotivate yourself, because if you demotivate yourself now, then you are gonna mess up in your CLAT examination also. So do not demotivate yourself. Again, take good proper sleep, proper eating habits, improve your reading habits. अपने accommodation plans, अगर आपका सेंटर कहीं दूर आया है, आपके travel plans, वो सब sort करके रख लेना. So that is all you have to do in the last 30 days. Give your mocks properly till the end week of November. Analyze them properly, and yes, then that's should be the only strategy, because अब जितना करना था उतना कर चुके हो. Right, ma'am. अब last 30 days में वो एक last push की जरूरत है, बस over confident नहीं होना है. Right. वो last push अगर आपने कर लिया, then CLAT के बाद तो you have the dream and in your hand. Right, ma'am. So students and everyone, this was all for today, and I believe and we believe कि आप लोग को काफ़ी strategies, काफ़ी insights आपको मिले होंगे, और जिन insights की आपको literally बहुत ज़रूरत भी है ऐसे टाइम पे, and throughout your journey as well. And we talked about a lot of important topics related to mocks, and every important thing revolving around mocks, like what should be your ideal strategy, how many mocks you should be taking, what should be your ideal mindset, and keep following us for these insightful sessions. हम ऐसे strategical sessions और लेकर आते रहेंगे, ऐसे इस तरीके के conversational podcast हम और लाएंगे. So do follow us and do subscribe to our YouTube channel. Until then, take care. All the very best. Bye bye. All the very best for your preparation, and I'll see you in the next one.